So today we'll discuss पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था किरचॉफ्स लॉ. क्लियर. So let's recap किरचॉफ्स लॉ and we'll explain further किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ, there are two laws, KCL and the second one is the KVL. एक बार रिकैप कर लो फिर आगे पढ़ेंगे. तो KCL क्या बोलता है बाबू? Sum of total current at junction will be 0. So I1, I2, I3, I4. So I1 plus I2 minus I3 minus I4 must equal to 0. एक स्टेटमेंट क्या है कि if current is coming towards the junction, then take positive. If current is going away from the junction, then take negative. Clear? So according to this, I1 and I2 are coming towards the junction, so they will be taken as positive, and I3 and I4 are going away from the junction, so they will be taken as negative. Other you can also state in other way, and the statement is current coming towards the junction is equal to the current going away from the junction. So what? I1 and I2 are the current coming towards the junction. So I1 plus I2, this is the total current coming towards the junction, and this must equal to current going away from the junction. So I3 and I4 are going away. So what? I3 plus I4. Clear? So this is the rule. Sometimes this is called the junction rule also. Junction rule. ये करा दिया था. Now KCL. Clear? KCL is what? KCL tells that sum of total potential difference in a closed loop will be 0. Clear? Sum of total potential difference in a closed loop will be 0. Clear? So लिखो फिर आगे करवा रहा हूँ. And this is called the Kirchhoff voltage law. Sometimes it is called the loop rule. Clear? So the statement is sum of total potential difference in a closed loop will be 0. Example, if this is a circuit diagram, potential difference 16 volt, 2 ohm resistance, 3 ohm resistance, and potential is 5 ohm. So what? Let us assume current is going which direction? Again, so high to low. If you are going high to low, then take potential as PD as positive na, and if you are going low to high, then take PD as negative. So we are moving this direction. So what we are moving low to high, low to
height, so potential difference will be negative, so minus of 10, and here moving high to low to high, again potential difference is minus of 5, and again we are moving high to low, so minus 3I, current is I na, and again moving high to low, so minus 2I is equal to 0. So 2I is the potential, 3I is the potential drop of this, 2I is the potential drop of this, and 5 is the potential of this, and 10 is the potential of this. So what? कितना होगा? minus 15 minus 5I is equal to 0. So I is equal to 15 upon 5 is minus sign, that is minus 3 ampere. So I is this. So magnitude of current is 3 ampere is the magnitude na, and minus sign. What about minus sign? Minus sign means तुमने जो डायरेक्शन जूम किया वो एक्चुअल डायरेक्शन है ही नहीं, सर्किट का डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे होगा, यानी कि सर्किट में जो रियल डायरेक्शन है करंट का वो ऐसे है, ऐसे करंट जा रहा है, और आई इक्वल टू 3 एम्पीयर होगा। माइनस साइन मींस तुमने जूम किया उसका भी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, कोई दिक्कत? तो इसको लिखो केवीएल, थोड़ा सा ऊपर लिखो यार, बहुत स्पेसिंग है केवीएल। Kirchhoff voltage law, sum of total कहीं के ईएमएफ भी बोल देते हैं, सम ऑफ टोटल ईएमएफ इक्वल टू 0 होता है, नेवर माइंड, सम ऑफ टोटल ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड लूप विल बी 0। तो लेकिन ईएमएफ बोलना गलत है, ये पाप है, लेकिन बोलते हैं तो हम भी बोलते हैं। क्लियर? ये इंडिया है, ठीक है, कभी कभी गाय भैंस जाती है, कभी कभी भैंस गाय हो जाती है। सो sum of total EMF slash potential difference in a closed loop will be 0. So we have to prove this. We have to prove this. स्टेटमेंट का प्रूफ करना है। क्लियर? तो इजी है। You know electrostatic force. Electric force is conservative in nature. Electrostatic force is conservative in nature. So work done by electric force in a closed loop will be 0। मतलब ये कि तुमने यहाँ से वर्क करना शुरू करना चाहिए इस पॉइंट से, और फाइनली वर्क का घूम घाम के यहीं आ गया। तुमने वर्क कितना किया यार? 0, क्योंकि तुमने क्लोज लूप बना दिया ना। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ क्लोज लूप विल बी 0, एंड आल्सो if initial and final point coincide, then work done will be 0 now. So work done will be 0 by conservative force ना। इनिशियल और फाइनल सेम पॉइंट पे है तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा? 0 वर्क करेगा। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल विल बी 0। मतलब मान लो तुम यहाँ हो एक और एक बी यहाँ पार्टिकल। अब ये क्या है? यहाँ मान लो Q1 चार्ज, यहाँ Q2 चार्ज है। अब Q1 चार्ज को घुमा फिरा के चारों तरफ से घुमा के फिर यहीं ला दिए, तो इसका एनर्जी चेंज हुआ क्या? एनर्जी भी चेंज नहीं हुआ और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज, क्योंकि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है ना। और इस पॉइंट को उठा के यहीं ला गए। मान लो कि कोई मास है 2 kg, द ऑब्जेक्ट हैज 2 kg मास एंड यू आर लिफ्टिंग अप टू 3 मीटर and again coming back to here now, so यहाँ से लेकर गए यहाँ और फिर वापस आएगा। So the work done will be 0, so change in potential is equal to 0 because there is no any change in configuration. If there is no any change in configuration, work done will be 0 because electric force or gravitational force are conservative in nature ना।
सो अगर मान लो यहाँ से बी को उठाते हैं और चार्ज पार्टिकल यहीं लगा दिया तो लॉकडाउन विल बी जीरो. सो चेंज पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q2 विल बी जीरो. विल यूज दिस कॉन्सेप्ट टू प्रूव दिस स्टेटमेंट. दिस क्लियर? विल यूज दिस. क्लियर कैसे? चलो करो इसको. मान लो बाबू तुम इसका पोटेंशियल V है, इसका R रेजिस्टेंस है R1, इसका R2, करंट I जा रहा है. मान लो तुम यहाँ से चले हो बाबू, क्लियर? यहाँ से चले और फिर घूम के यहीं आ जाओगे तो तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? ऑब्वियस जीरो होगा ना यार. मान लो तुम यहाँ से घूम के यहीं आ गए तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? जीरो. इसका मतलब वही तो स्टेटमेंट है ना, सम ऑफ टोटल potential difference in a flowing liquid. तो यहाँ से आए हो और फिर घूम के यहीं आ गए, तुम्हारा परसेंटेज क्या होगा? चेंज इन परसेंटेज क्या है? जीरो है. तो ऑब्वियस क्या होगा? टोटल चेंज जीरो ही होगा ना. स्टेटमेंट तो ऐसा दिख रहा है, झलक रहा है, हाँ कि होगा. लेकिन मैथमेटिक्स कैसे करेंगे प्रूफ? मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करेंगे उसके लिए करते हैं अपन एक. ठीक है, तुमको लगेगा कि हाँ यार इमेज बन जाएगा माइंड में. क्लियर? तो ये मान लो ये फिगर बना, थोड़ा सा फिगर को मॉडिफाई करते हैं. ये हो गया बाबू. और मान लो कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बाबू मान लो यहाँ बैटरी नहीं है, ऐसा बैटरी नहीं है. तब पॉइंट ए और पॉइंट बी है, कोई दिक्कत? क्लियर? तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज बी ए एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज वी. पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज बी एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज वी. नाउ वी माइनस डी विल बी इक्वल टू what? अगर मैं इसको C बोल दूँ, इसको D बोल दूँ, इसको E बोल दूँ, इसको फिर यही B हो जाएगा ना यार. ये B है तो यहाँ भी B हो जाएगा ना, यही पॉइंट हो जाएगा ना. अरे बात समझ, तो ये भी B ही हो जाएगा ना. अरे कोई रेजिस्टेंस थोड़ी लगा यार. अब होगा क्या कि VA माइनस VB कैन बी रिटन है VA माइनस VC प्लस VC माइनस VE प्लस VE माइनस V. तो कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं लिखेंगे ऐसा. कोई दिक्कत है, कोई एतराज है मेरे लिखने से? इसमें कोई परेशानी नहीं. तो VA माइनस VC को क्या लिख सकते हो? VA माइनस VC क्या लिख सकते हो? VA माइनस VC को क्या लिख सकते हो? VA माइनस VC को क्या लिख सकते हो? इसका पोटेंशियल मान लो V है तो माइनस भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि दिस वन इज हाई एंड दिस वन इज एट लो. सो माइनस ऑफ V लिखते प्लस एंड VC माइनस VE यानी और क्या है? VC माइनस VA, VC माइनस VA क्या लिख सकते हो? दिस इज VC एंड दिस इज VE. तो क्या लिखा हुआ है? मान लो किसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है और करंट जो I जा रहा है क्या होगा? प्लस I R1 होगा कि नहीं होगा? एंड VE माइनस VB कितना होगा? I R2. यही होगा ना, I R2. अब देखो लेट अस अज्यूम if point A, if point A and point B one side, ऐसा एज्यूम करते हैं अपन कि पॉइंट ए और बी क्या दोनों एक ही पॉइंट पे, दोनों एक ही पॉइंट में होगा तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? VG इक्वल टू सम V ना हो जाएगा कि नहीं? क्लियर? तो अब क्या होगा कि सम V, इसका मतलब इसका सम लिखो, दोनों पॉइंट एक तरफ, दोनों पॉइंट क्या होगा? सेम होगा. तो V एक जगह V रखूंगा माइनस V रखोगे ना यार, इक्वल टू माइनस V प्लस I R1 प्लस I R2 एंड दिस इक्वल टू 0. तो 0 इक्वल टू माइनस V प्लस I R1 प्लस I R2 आया कि नहीं? तो V इक्वल टू, अरे ये तो थोड़ा कोई और भी मान लो यार, इसको कुछ और भी मानो या V प्राइम मान लेते हैं. ठीक है, तो V प्राइम क्योंकि हम इन्हें भी माना था. V इक्वल टू I R1 प्लस I R2. यही KCL है ना यार, करके देखो, KCL लगा के देखो, KVL लगा के देखो, होगा क्या? KVL लगा के देखो तो यही आएगा. अगर दोनों पॉइंट A और B साथ में है तो सर्किट कैसा बन जाएगा बाबू? सर्किट बिल्कुल ऐसा बन जाएगा ना, A और B साथ में हो जाएंगे. A और B क्या है? यही है ना. अब सर्किट बनाओ R1 R2 और ये I, तो कितना होगा? हम कहां से कहां जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं ना, तो कितना होगा? माइनस V हाई स्लो जा रहा है
माइनस बी, तो इसमें क्या होगा प्लस आई आर वन प्लस आई आर टू एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू इक्वल टू 0 आया कि नहीं। तो केसीएल जो है बाबू केवीएल इसी का है, डिफरेंस लेके 0 कर देंगे। क्लियर, क्योंकि पोटेंशियल 2 पॉइंट आर कोइंसाइडिंग, जहां से तुम चले हो वहीं वापस आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा 0 होगा ना। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा 0 होगा। गॉट माय पॉइंट। तो दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ, ये तुम्हारे बुक में नहीं खाली स्टेटमेंट था। आज तक हमको आपको अगर क्लियर हुआ अच्छा लगा तो गुड। बाकी के बच्चे ये बुक में नहीं है, यू कैन रीड द बुक एनी बुक। कोई और बच्चे बाकी के बच्चे गुड, ठीक है गुड गुड। चलो लिखो लिखो। श्रुति तुम्हें नहीं समझ आया क्या? हाँ कहाँ से नहीं समझ आया तुम्हें? कौन सा ये वाला? ये देखो हमने क्या किया वी एम माइनस बी बी इक्वल टू वी एम माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस बी प्लस बी माइनस बी। अब ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। तो पॉइंट ए ये है बाबू और पॉइंट सी ये है। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या है कम है और पॉइंट सी का क्या है ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा इसका, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी है इन दोनों का, यानी कि मान लो कि ये 3 है और ये 5 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। और प्लस होगा कि माइनस, वो डिपेंड करता है कौन जा रहा है, किसमें से किससे माइनस करो। तो हम इसमें से ये घटा रहे हैं, तो ऑब्वियस क्या होगा माइनस ऑफ बी होगा ना। तो वही माइनस ऑफ बी यहाँ लगाया है। अरे बस अब यहाँ देखो यहाँ का पोटेंशियल क्या है ज्यादा, यहाँ का पोटेंशियल क्या है कम है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ज्यादा में से कम को घटा रहे हैं, यहाँ पर प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत। आई आर वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब प्लस होगा या माइनस होगा वो डिपेंड करता है किसमें से किसको घटा रहे या तुम किधर जा रहे हो। आगे बस आज समझ आया। और हमने मान लिया कि ए और बी का इसका पोटेंशियल बी है इसका बी भी है। अब दोनों को कोइंसाइड करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा ना यार, दे विल बी एट द सेम पोटेंशियल। तो जब दोनों पॉइंट साथ आ गए तो जो बीए का पोटेंशियल होगा वही बीबी का होगा। तो बीए इक्वल टू बीबी इक्वल टू बी प्राइम, हमने कुछ मान लिया बी प्राइम, एज्यूम कर लिया बी प्राइम। क्लियर, एक्स वाई जेड जैसे मानते हैं वैसे हम बी प्राइम मान लिए। तो दोनों क्या आएगा बी ए माइनस बी बी, दोनों का पोटेंशियल सेम है तो बी प्राइम माइनस बी प्राइम ये 0 हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। अब समझ आई बालो? क्लियर हुआ? गुड, लिखो जल्दी लिखो। ये कैसे दोनों अप्लाई करेंगे आपको? वोल्ट 20 वोल्ट 2 ओम 10 वोल्ट 3 ओम 5 वोल्ट 6 ओम 2 वोल्ट 3 ओम 2 ओम। तो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। Each branch, find the current in each branch. This is our question. यानी कि इसमें तीनों में करंट बताओ कितना होगा। तो विल अप्लाई बोथ रूल केसीएल। पहला अप्लाई करेंगे केसीएल और फिर अप्लाई करेंगे केवीएल। तो केसीएल इज अप्लाई एट ईच एंड एवरी जंक्शन, ईच एंड एवरी जंक्शन, हर जंक्शन पे केसीएल अप्लाई करें। और केवीएल क्या होगा ईच एंड एवरी क्लियर। तो पहले केसीएल सोल्यूशन से जो डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ भी ले सकते हो, योर चॉइस, योर लाइफ योर चॉइस। इधर ले सकते हो या इधर ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मान लो मैं इधर ले रहा हूँ तो आई करंट जाएगा, तो इधर आई जाएगा, इधर आई जाएगा। एक बार में सेम करंट जाता है, यानी कि अगर सिंगल वायर है बाबू उसमें कुछ भी लगाओ, बैटरी तुम कितना भी लगाओ, सबसे क्या होगा अगर आई जा रहा है तो यहाँ से भी आई, यहाँ से भी जाए, यहाँ सबसे एक बार में सेम करंट जाएगा जब तक जंक्शन नहीं जाए। तो करंट जा रहा है भाई आई 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 यहाँ तक आई जाएगा। अब यहाँ आई जाने के बाद आई 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तुम कुछ भी ले लो, आई 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो मान लो इधर जो जा रहा है बाबू I1 जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा
I2 नहीं गधो, I माइनस I1 ना, टोटल करंट I आ रहा है और दो पार्ट में डिवाइड तो I1 इधर चला गया तो बाकी के बचे उधर जाएगा, क्योंकि जंक्शन रूल है ना ये। किसी के मन में अगर द्वेष है, शक है, तो क्या करेगा, वो इधर लेके भी कर सकता है। इधर लेगा तो क्या होगा, उसके लिए सर्किट ऐसा कुछ बन जाएगा ऐसा। तो इधर करंट लोगे, मान लो तुम आई इधर लिया किसी ने, तो इधर तो मान लो कि इधर आएगा I1 जाए तो उसके लिए इधर क्या होगा, I माइनस I1। कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकते। ये वाला जो है यहाँ का है, किसी के मन में ये है तो ये वाला यहाँ का है, ये जंक्शन इस जंक्शन का है और ये वाला इस जंक्शन का है। तो होगा क्या कि अगर इधर वाले का आंसर नेगेटिव में आया है, इधर वाले का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और इधर वाले का आंसर पॉजिटिव में आया है, इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ये सब मैंने बता दिया, तो डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज नहीं हो रहा, तुम्हारी मर्जी है। इतना लिबर्टी, इतना आज़ादी ने दे रखा है किरचॉफ ने, देख रहे हो तुम्हारे बारे में कितना सोचा उसने। आई यू शुड बी थैंकफुल टू हिम। और इतना सही से लॉ बना, एक लाइन में एक लॉ, दो लाइन में दो लॉ, गुड। कोई दिक्कत, तो ये हो गया बाबू, तो अप्लाई करो। ये हो गया, अब करेंगे केसीएल का काम हो गया। अब यहाँ आएंगे, यहाँ जंक्शन वाला काम हो गया। इधर से I1 जा रहा है, I जा रहा है, इधर I1, इधर I माइनस I1। अब घूम फिर के कहाँ जंक्शन आएंगे, यहाँ पर। तुम्हें जंक्शन पे आना है। अब जंक्शन पे क्या होगा कि I माइनस I1 घूमते यहाँ I माइनस I1 ही आएगा, और इधर से घूम के I1 आएगा। तो यहाँ से और यहाँ से दी जाते इनकमिंग करंट्स ना, दी जाते इनकमिंग करंट्स। इधर मान लो I इधर निकला तो I इधर आएगा ना, सेम आएगा, सेम कट जाता है, याद रखना। इसका मतलब देखो, अब दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। चेक कर लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो थंब अप करो, अगर कैसे करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में समझ आया तो थंब अप करो, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। क्लियर बच्चे, गुड, जल्दी फटाफट करते चलो तुम लोग, गुड। तो अब अपन करेंगे बाबू, अब अप्लाई करेंगे केवीएल। केसीएल हो गया, केवीएल। केवीएल अप्लाई करने के लिए पहले लूप बनाएंगे। तो पहला लूप ये है और दूसरा लूप ये है। तुम अपने मर्जी से लूप बना सकते हो। एक लूप तो ये हो जाएगा, एक लूप ये हो जाएगा, और एक लूप ये वाला हो जाएगा। ध्यान रखना, तुम मार्किंग कर दो, एक लूप ये वाला हो जाएगा, एक लूप ये, एक लूप ये वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लोज सर्किट। और एक लूप बड़ा वाला, 3 लूप लेना है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा वेरिएबल कितना, जितना नंबर ऑफ लूप शुड इक्वल टू नंबर ऑफ लूप शुड इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। तो हमारे पास कितने वेरिएबल है, I एंड I1 ना, दो ही वेरिएबल है ना, I एंड I1। तो लूप कितने बनाएंगे, 2 बनाएंगे। तो एक ये लूप बना लो और एक ये लूप बना लो और सॉल्व कर लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो लूप कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन करते पहले इस लूप में चलो। तो क्या लेना है, हाई टू लो क्या लेना है, हाई टू लो क्या लेना है बाबू, बोलो, निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव लेना। हाई टू लो पॉजिटिव, यानी कि हाई टू लो हम इधर जा रहे हैं, जिधर करंट जाता है उधर ही चलना, कोई दिक्कत, आसानी होगा। तो हाई टू लो जा रहे हैं, यानी कि हम इधर से जा रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हाई टू। यानी कि जब हाई टू लो पॉजिटिव है तो लो टू हाई क्या होगा, बोलो, यानी कि हम इधर जा रहे हैं निगेटिव। तो क्या होगा, लो टू हाई, यानी कि -30 होगा। और इधर कितना होगा, यहाँ क्या होगा, हाई यहाँ लो, तो कितना होगा, +2i होगा। इधर कितना होगा, -20 होगा। अब कोई दिक्कत, इधर चलो, इधर चलो, इधर कितना हो जाएगा, +6i1 ना, 6i1, क्योंकि i1 करंट है, 6 होगा। और फिर कहां से कहां जाए, लो से हाई, और लो से हाई के लिए क्या, निगेटिव, यानी कि -5। फिर यहाँ कितना होगा, +3i1, फिर -10। क्लियर, इक्वल टू 0 हो गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में। कोई बचा है नहीं ना, रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जाएगा उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, उस करंट को तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। पहला सर्किट हो गया। अब दूसरा लूप, इस लूप में चलो, किधर चला, इधर से चलो या इधर से, कोई फर्क ना पड़ता। इस लूप में करंट किधर से आ रहा है, इधर से ना, तो इधर से, यहाँ से करना शुरू करो, यहाँ से। तो यहाँ कितना होगा, हाई टू लो टू हाई जा रहा है, तो लो टू हाई कितना है, -2 वोल्ट ना, यहाँ से जा रहा हूँ -2 वोल्ट। फिर यहाँ हाई टू लो कितना, +3i माइनस I1, फिर यहाँ +2i माइनस I1। यहाँ कितना होगा, अब इधर चलते हैं, इधर, अब इधर कितना होगा, हम कहां से कहां जा रहे हैं, हाई टू लो, तो कितना होगा, +10। इसके केस में क्या होगा, अब इसके केस में ध्यान ये देना तुमने
कि तुम्हारा करंट इधर से आ रहा था, ये प्लस और ये माइनस, तो हम किधर जा रहे हैं, लो से हाई, और लो से हाई कितना होता है, निगेटिव, यानी कि -3i1। कोई दिक्कत? और फिर हाई टू लो जा रहे हो तो +5 ना, +5, और फिर इधर -6i1 = 0। आ रही बात समझ? ये स्क्रीन पे देखना, वीडियो में पूरा दिख रहा है स्क्रीन, क्लियर? सो 2 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 2 अननोन सॉल्व करोगे, तुम्हारा i और i1 दोनों आ जाएगा। थंब क्लैप करो अगर ये क्लियर हुआ तो। क्लियर हुआ? स्क्रीन पे बच्चे इधर ऑनलाइन वाले, हाँ गुड। बाकी के बच्चे फटाफट करो, गुड। तो बाबू ये है, लिखो और घर पे सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर। और भी कराता हूं मैं सर्किट, करो जल्दी करो। कर लेना, ठीक है, ठीक है। ये हमारा सर्किट है ऐसे। सो 2 ओम लॉ लगाओगे तो थोड़ा सा परेशानी होगा इसमें। 2 ओम मान लो, इसको 4 ओम, इसको 6 ओम, इसको 2 ओम, और बैटरी मान लो 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट। कोई दिक्कत? इसको मान लो 6 ओम। सो फाइंड द करंट इन द ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। कैसे करेंगे? अपना सबसे बेस्ट तरीका ये कि पहले एक बैटरी उठाओ, वहां से करंट ले लो, और स्मार्ट वर्क करना है तो जो जिसका ईएमएफ ज्यादा होना वहीं से करंट लो। तो किसका ईएमएफ ज्यादा लग रहा तुम लोगों को? इसका 10 है ना, यहीं से करंट ले लो। तो करंट हमेशा मान लो इधर जा रहा है, मान लो हमेशा, मतलब इधर पॉजिटिव जा रहा है, तो करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा। आप कहाँ जंक्शन बनेगा बाबू? यहाँ जंक्शन बनेगा, तो यहाँ करंट डिवाइड होगा। तो मान लो इधर कितना गया, i1, तो इधर कितना गया, i माइनस, ये करंट गया 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 गया, ये गया इधर आया, इधर। आप जंक्शन कहाँ बनेगा बाबू? यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा फिर? अब इधर वाला करंट मिल के इधर कितना बन जाएगा बाबू? फिर आई बन जाएगा ना। अरे इधर वाला आके समझ रहे हो ना? इधर कितना करंट है, i माइनस i1। कोई दिक्कत? तो फिर इधर i बन जाएगा, ठीक है, इधर i हो जाएगा, ठीक है। अब सर्किट है, अब ड्रॉ कर लो। लूप कितना बनेगा? 1 2, और पूरा एक 3। अब इसमें कितना बनेगा? 1 2 1 2। एक लूप ये भी बना सकते हो, यहाँ से जाकर घूम के यहाँ से भी आके लूप बना सकते हो, 3 लूप बनेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो गया बाबू। तो करो पहला लूप और दूसरा लूप, 2 लूप बना लो। तो लूप बनाओ, क्या होगा? कहाँ शुरू करें? यहाँ शुरू करें। पहले लिख लो, हाई टू लो क्या लेना है? तो लो टू हाई क्या लोगे? चलो, तो फर्स्ट लूप फर्स्ट क्लियर तो होगा क्या बाबू? यहाँ शुरू करते हैं, यहीं शुरू करते हैं। तो कितना होगा? दिस इज प्लस दिस इज माइनस, वी आर गोइंग हाई टू लो, इसका स्टेप मान लो 5 में। तो कितना होगा? 5 आई ना, फिर हाई टू लो, सॉरी लो टू हाई तो -10 ना, फिर हाई टू लो, तो इसका नहीं लिखा है क्या यार? 2 ओम, तो 2 आई ना, प्लस 2 आई ना, फिर यहाँ इधर जाओ, इधर कहाँ जा रहे हैं हम? फिर हाई टू लो, तो +4i1 ना, i1 में हाई टू लो, इसका वोल्ट मान लो 2 वोल्ट, तो +2 वोल्ट ना, क्लियर। और फिर यहाँ जा रहे हैं, यहाँ किधर? हाई टू लो क्या है? +6i1। इधर आ रहा है, इधर कितना होगा बाबू? हाई टू लो तो 2i ना, 2i = 0। कोई दिक्कत? पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन दूसरे लूप में चलो, इस लूप में आ जाओ। इस लूप में कहाँ शुरू करें बताओ? यहाँ शुरू कर दे, यहाँ शुरू करो। तो क्या होगा? वी आर मूविंग हाई टू लो, तो कितना होगा? 2i माइनस i1 प्लस अगेन 2i माइनस i1 प्लस हाई टू लो 3 ना, फिर -5 ना, लो टू हाई
फिर प्लस 6i माइनस i1 दिख रहा ना, and in here minus 5 because low to high, again here minus 6i1 because we are moving low to high, this is high and this is low, so low to high, minus 6i1. Clear? Here also plus 2 because we are moving high to low to high so minus 2 na, minus 2 na, minus 2, and again we are moving low to high so minus 4i1 is equal to 0. So two equation, two unknown, you can solve this equation 2 and this equation 1. मैं इधर लिख देता हूँ इक्वेशन शांति से देख लो. 5i minus 10 plus 2i plus 4i1 plus 2v plus 6i1 plus 2i is equal to 0. This is first equation. Second equation 2i minus i1 plus 2i minus i1 plus 3 minus 5 plus 6 I minus i1 minus 5 minus 6 i1 minus 2 minus 4 i1 is equal to 0. So two equation, two known, you can solve. Clear? अब बाबू बुक से, from book solve the complicated circuit. एक NCERT एग्जाम्पल कर लो, NCERT example and other books also. Clear? And this is very easy, है ना. First apply KCL at each and every junction, and KVL in each loop. Keep in this mind, and also number of loops should be equal to number of variable, or number of equations should be equal to number of वेरिएबल. जितना ना वेरिएबल उतना इक्वेशन बनाओगे उतना बनाना पड़ेगा. ठीक है बाबू. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम अदर प्रॉब्लम ऑन किरचॉफ्स लॉ. सो बाय.